السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ضلع ناروال کے زیر اہتمام 12ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس کی غرض و غایت آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ نہ تو کسی کو گالی گلوچ دینا مقصود ہے، نہ کسی کو شکست دینا مقصود ہے۔ ہمارے تمام دوست احباب علماء کرام جو آئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، ان سب حضرات کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اس پروگرام کی زینت ہوا کرتے تھے ہمارے ضلعی سرپرست مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد یحییٰ خان صاحب سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی طرف سے وقت آیا، اللہ کی طرف بلا لیے گئے۔ کبھی کبھی میں امن کمیٹی کے اجلاس میں جاتا ہوں، ان کے بعد بھی تو بڑا دکھ ہوا کہ جو شخص 25 سال امن کمیٹی کا ممبر رہا اور امن کا علم بلند کرتا رہا، وہ ڈویژن امن کمیٹی ہو، ڈسٹرکٹ امن کمیٹی ہو، تھانہ اور تحصیل امن کمیٹی ہو، کبھی بھی امن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب اس دنیا سے چلے گئے تو امن کمیٹی کے وہ ذمہ دار جو ہر مجلس میں اٹھ کر کہتے تھے مولانا کیا حال ہے، آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے، دوسری دفعہ امن کمیٹی میں گئے تو کسی کی زبان سے حرف غلط کی طرح ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ مولانا کے لیے فاتح پڑھ دی جائے۔ یہ سربراہان مملکت اور وقت کے ذمہ دار بڑے ہی غیر ذمہ دار لوگ ہوتے، انہیں کسی عالم کی کوئی قدر نہیں ہوتی، صرف اپنے اقتدار کی قدر ہوتی ہے، اپنی سیٹ کی فکر ہوتی۔ تو بہرحال اب الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب نے جانا ہے۔ میری ان سے 45 سال کی رفاقت رہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے کبھی بھی، میں نے جب دعوت دی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ ختم نبوت کے لیے جب جاتا جیب سے چندہ بھی نکالتے اور پوچھتے کس وقت پہنچنا ہے، تشریف بھی لاتے۔ اللہ کے کرم سے ہم نے ان کے صاحبزادے قاری عبدالرؤف محسن صاحب کو ساتھ لیا اور ضلعی جنرل سیکرٹری انہیں بلایا، جو اس وقت سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے۔ پروگرام زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کے سامنے سٹیج پہ تشریف لائیں گے ہمارے عزیز بھائی جناب خواجہ غلام مرتضیٰ صاحب، وہ اگلے نعت خواں کو دعوت دیں گے۔ میں تو ترتیب عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ایک فکر ہے میرے دوستو، ایک فکر، اور میرے اکیلی کی نہیں ہوگی، سب کی فکر ہوگی۔ سفیر ختم نبوت استاذ العلماء حضرت مولانا منظور احمد چوٹی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، اس شخص کو اتنی فکر تھی، کھانا کھا رہے تو ختم نبوت کی بات، مجلس ہے تو ختم نبوت کی بات، سفر ہے تو ختم نبوت کی بات، بیٹھے ہیں تو ختم نبوت کی بات۔ 1998 میں امت اخبار نے ایک خبر شائع کی، 1998 میں اس نے لکھا کہ مرزا طاہر نے انڈونیشیا سے 2 پروفیسروں کو برطانیہ بلایا اور ان کو پوری طرح تیار کر کے مرزائی بنا کے، اس بہانے سے کہ آپ کو پی ایچ ڈی کرائیں گے، خرچہ ہم دیں گے، انہیں 2 سالوں میں مرزائی بنا کر واپس انڈونیشیا بھیج دیا۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے 1000 آدمیوں کو قادیانی بنایا، 1000 آدمیوں کو قادیانی بنایا۔ یہ امت اخبار نے خبر چھاپی تو وہ مرد کلندر تڑپ اٹھا،
पाकिस्तान में बैठा है बेसर समानी के आलम। कहा अब क्या किया जाए। अपने बेटे मौलाना मोहम्मद इलियास से कहा, वो मक्का यूनिवर्सिटी उम्मुल कुर्रा से फारग हैं, अरबी बहुत अच्छी लिखते जानते हैं इलियास साहब। कहा इलियास आज जी खबर छपी है ना, इन अरबी से तर्जमा कर। उस खबर को अरबी में तर्जमा किया और वो ख़त राबता इस्लामी मक्का मुकरमा के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया। चाहिए तो ये था कि ख़त लिखा, घर में आराम से बैठ जाते। चलो मैंने ख़त लिख दिया है। ख़त लिखा, कुछ दिनों के बाद वीज़ा लिया और सऊदीया पहुंच गए। वहाँ जाकर के आलमा राबता आलमी इस्लामी के लोगों से मिले। मुर्शिद आलम हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की नफ़रुल्लाह मरकज़ा से अर्ज़ किया, हज़रत ये ख़बर है, अब क्या करना चाहिए। फरमाया करते थे, आम नुकसान न समझो, जिस आदमी का ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट गया उसका कुछ बाकी नहीं रह गया, कुछ भी बाकी नहीं रह गया। तो हज़रत 1000 आदमी हजूर के रिश्ते से टूट गया, अब फिक्र करनी। तो हज़रत चूँकि वहाँ के मुकीम थे, उनकी रिहाइश वहाँ की थी, मदरसा सऊदिया के शेखुल हदीस थे, आइमा हरमैन से उनके ताल्लुकात थे। उनसे जब रब्ता किया, उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहते हो। हमारे वहाँ जाना चाहिए, जाके उन लोगों को समझाना चाहिए। कहा फिर हमारे मेरे पास तो खर्चा नहीं, मैं जा नहीं सकता। उस वक्त राबता आलमी इस्लामी ने 5 आदमियों को मुतय्यन किया, 5 आदमियों को अपने खर्चे पे इंडोनेशिया भेजा। मौलाना इलियास साहब को, मौलाना चिनौटी रहमतुल्लाह अलैह को, अल्लामा खाल महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह को, अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह को, एक हज़रत मक्की रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के नौजवान थे, उनको अपने खर्चे पे भेजा। इंडोनेशिया पहुँचे, वहाँ तलाश करते करते उन 2 प्रोफेसरों को तलाश कर लिया। 10 दिन मेहनत करके उनको दोबारा इस्लाम में दाखिल कर लिया और कहा अब तुम इनकी मेहनत करो, जो में तो पता नहीं कहाँ कहाँ है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अपने हज़रात की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूँ, सिक्योरिटी वाले, इदारों वाले, डायरी वाले ये बात लिखें, हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, लेकिन जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार है, ना मेरा है ना आपका है। पाकिस्तान का भी दुश्मन है, इस्लाम का भी दुश्मन है, कौम का भी दुश्मन है। ये बात बिल्कुल सीधी सादी बात है। क्यों नहीं इन छुपे हुए सांपों को तलाश कर करके महकमों से निकाला जाता? क्यों नहीं इन बिच्छुओं को जो उम्मत मुसलमान अला साहिब सलाम की बीख कुनी पे अड़े हुए हैं, इनको निकाला जाए तो फिर इंशाअल्लाह ये मुल्क कायम है, कायम रहेगा। कादियानी पाकिस्तान के खैर खा नहीं, दुश्मन है मुल्क पाकिस्तान के। ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है। आज भी कादियानी इस बात का अकीदा रखते हैं, एक दिन आएगा पाकिस्तान टूटेगा, नौज़ुबिल्लाह, अखंड भारत बनेगा। और ये चिनाब नगर रबुआ में जो मरदूद दफन हुए हैं, अमानतन दफन करते हैं, इनको उठाकर बहिश्ती मकबरा कादियान में ले जाएंगे। ये बात रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। अगर कादियानी पाकिस्तान के खैर खा होते तो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कराची में विशाल हुआ, जनाजा उठा, बरूनी मुल्क के सफ़ीर, मुल्क मुसलमानों के मुल्कों के सफ़ीर, गैर मुल्कों के सफ़ारा पाकिस्तान आए, जनाजा उठा, जनाजे की इमामत उनकी वसीयत के मुताबिक देवबंद के सपूत हज़रत मौलाना अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने करना थी। जनाजा उठाया गया। उस वक़्त का वज़ीर ख़ारिजा मुर्तद आज़म पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का बड़ा मुर्तद था, मेरी मुराद ज़फ़रुल्लाह कादियानी डस्के वाला वज़ीर ख़ारिजा था। जब जनाजा उठता है, एक तरफ
गैर मुस्लिम सफीरों के साथ गप्पे लगा रहा है। अखबारी नुमाइंदों ने सवाल किया, जनाब चौधरी साहब ये बानी पाकिस्तान का जनाजा जा रहा है, आपने जनाजे में शिरकत नहीं की, जनाजा नहीं पढ़ा। उस दुनिया के मुर्तद आज़म ने जो जवाब दिया रिकॉर्ड में मौजूद है, उसने कहा मैंने जनाजा इसलिए नहीं पढ़ा कि जनाजे का इमाम शबीर अहमद उस्मानी मुझे काफिर कहता है। दूसरा जवाब देता है, आप मुझे एक काफिर हुकूमत का मुसलमान वजीर समझ ले या मुसलमान हुकूमत का काफिर वजीर समझ ले, जनाजा नहीं पढ़ा। आज भी कादियानियों का अकीदा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लिखो डायरी, हुकूमत वक्त को पहुंचाओ, ये दुश्मन है इस्लाम के, दुश्मन है मुल्क के, कभी खैर खा नहीं हो सकते। इसलिए जिन्होंने बानी पाकिस्तान का जनाजा नहीं पढ़ा वो पाकिस्तान के किसी वजीर का भी नहीं पढ़ेंगे। और कादियानियों का हाँ मसला है। मैं कहना चाहता हूँ, ये बात आपके हज़रात के गोश गुजार करना चाहता हूँ, कुरान और सुन्नत की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में ये फैसला है। दुनिया के 3 बड़े फोरम होते हैं किसी मसले को हल करने के लिए। एक अवामी फोरम होता है और एक अदालत होती है, तीसरा पार्लियामेंट होती है। पाकिस्तान के 3 फोरमों से ये मसला हल हो गया कि मिर्ज़ाई इस्लाम से खारिज है, इनके इस्लाम से के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब हम तो कुरान और सुन्नत की वजह से इन्हें गैर मुस्लिम कहते हैं। इनसे पूछो तुम हमें क्या कहते हो, ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। कादियानी, दुनिया का कोई कादियानी आपको मुसलमान नहीं समझता। उनके नज़दीक आप काफिर हैं, दारा इस्लाम से खारिज हैं। वो मुल्क का सदर हो, मुल्क का वजीर आजम हो, मुल्क की अस्करी कुव्वत का सरबराह हो, कोई कादियानी से मुसलमान नहीं समझता। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, हवाले का जिम्मेदार मैं हूँ। मिर्जा बशीर अहमद में उसने अपनी किताब कलमातुल फसल के अंदर लिखा है, जो मिस्री मौत मिर्जा गुलाम अब्द कादियानी का मुनकर है वो काफिर है, दार इस्लाम से खारिज। जिम्मेदार हूँ इस हवाले का। बल्कि सवाल किया गया, आप अगर मिर्जा को नबी समझते हैं तो उसका कलमा क्यों नहीं पढ़ते? ये बड़ा लंबा जवाब है, सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। उसने कहा हजूर अलैहिस्सलाम के बाद हम मिर्जा को नबी मानने से काफिर नहीं हुए। फ़र्क ये हुआ एक नबी की ज़्यादती होगी, एक और नबी आ गया, लेकिन हमने कलमा क्यों नया नहीं बनाया? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसलिए हमने नया कलमा नहीं बनाया। ये मुल्क पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ ने फरमाया था, कादियानी कौम मुल्क इस्लाम के गद्दार है। एक मौके पे फरमाया, ये ऐसा नसूर है अगर इसको जस्ते मिल्लत इस्लामिया से खारिज काटा न गया तो सारे जिस्म को नकारा कर दे। मेरे भाइयों, आपको एक फ़िक्र देने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन बताना ये चाहता हूँ, ये आपकी गोद के बिच्छू हैं, आपकी गोद के कोबरे सांप हैं। इनसे खबरदार हो जाइए। हुकूमत वक्त को भी चाहिए इनको चुन चुन कर इनकी सीटों से इलादा किया जाए और मुल्क पाकिस्तान को बचाया जाए। प्रोग्राम की तरतीब सिर्फ मुख्तसर, अभी आपके सामने मैं दरख्वास्त करूँगा अपने भाई ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा साहब से, वो तशरीफ़ लाएंगे और नात खान को दावत देंगे। एक नात जनाब हाफिज़ अबू बकर मदनी अशरफ साहब की होगी, उसके बाद खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती सफदर अली साहब जो सादकाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, माशाअल्लाह बड़े सोज़ और तरन्नुम के साथ गुफ्तगू करते हैं, इनकी तकरीर होगी। उसके बाद मौलाना कासिम गुजर साहब की नात होगी। उसके बाद खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला आबद वड़ाई साहब का बयान होगा। उलमा से खुसूसन दरख्वास्त करता हूँ, मैंने हज़रत को जो उन्वान दिया है वो नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम का उन्वान दिया, नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम का उन्वान दिया है।
इस पर वो बड़े अच्छे असल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। उलमा खुसूसन उनके बयान को सुने और इंशाअल्लाह मेरे और आपके लिए नफ़ामंद साबित होगा। और आखिर में हमारी जमात पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी पीर तरीक़त जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब, उनका बयान छोटा होगा, दुआ होगी। दरमियान में उनके साहबजादे मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब चिनाब नगर साबक रबवा में जो ख़त्म नबूवत की खिदमत हो रही है उसकी कुछ कारगुजारी सुनाएंगे। बिहम्दिल्लाह ताला 1034 एकड़ ज़मीन जो कादियानियों ने पाकिस्तान बनने के साथ 1948 को 10 रुपये फी एकड़ के हिसाब से जमाती आमदिया के नाम पर लीज पर 99 साल के लिए ली थी, उस 1034 एकड़ में आप हैरान होंगे, इससे कबल किसी मुसलमान का घर नहीं था, सारे कादियानियों का घर था। अब तो वो वहाँ 8000 एकड़ पर काबज हैं, 8000 एकड़ पर काबज हैं। उस शहर में एक मकान खत्म नबूवत के नाम पर एक वकील साहब मुसलमान हुए, वो घर पर नहीं थे, कादियानियों ने उसके घर के अंदर घुस करके उसके वालिद को शहीद कर दिया। अल्लाह ने उसके दिल में डाला, उसने वो मकान हजूर की खत्म नबूवत के लिए वक़्फ़ कर दिया। वहाँ मरकज़ है, हर महीने 23 से 34 ख़ानदान मुसलमान हो चुके हैं, उन्हें राशन तकसीम होता है, बड़े बड़े अकाबर जाते हैं। मैं अपने उलमा को दावत देता हूँ, कभी मौका बनाओ तो मैं आपको वहाँ लेकर चलूँ महीने के बाद, फिर वो मंजर देखें अल्लाह की रहमत से क्या क्या वहाँ होता है, वो कारगुजारी सुनाएंगे। तो आखिर में पीर साहब दुआ करवाएंगे और आपको कुछ नसीहत आमोद बातें बनाएंगे। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं, आप सुन के जाएंगे, ये नहीं होगा उठना फ़ोन करना लाया एमी उठ के बाद टुर के मेरे फ़ोन आ गया, फ़ोन सुन कोई नहीं आऊँगा, नीयत ख़राब होती है। तो भाई आप हजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के लिए तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह 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 ये आपका बैठना ज़ाय नहीं जाएगा। ये आप सल्लल्लाहु की ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात महफूज है तो सारा दीन महफूज है। मैं स्टेज पर तशरीफ़ लाने वाले हमारे मुफ्ती अमजद साहब हैं, मौलाना शफीक उर रहमान साहब हैं, हमारे ज़िली अमीर मुफ्ती अब्दुल रशीद उस्मानी साहब हैं, कारी सईदुर रहमान शकरगढ़ से हैं, मौलाना शाहिद साहब हैं, मौलाना कारी अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, मौलाना कारी खादम हुसैन साहब हैं। मैं इन सब हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ये कलिमात कहते कहते अपने हुजूर बुला ले। ख़त्म नबूवत का काम इतना ऊँचा है। मौलाना मोहम्मद अली जलंधी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत का काम किया, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, आखिरी वक्त है, ज़बान से निकला ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद नहीं कहा तो रूह परवाज़ कर दी।